So welcome guys. Grid bag layout we use. See, in a grid layout all the cell are of the same size. Yes, sir. But if I want to customize my cell and make them of my own tailor-made size, then I will use which layout? Grid bag layout. Now for example, the first row is the cell is this big. The entire row is covered by one cell. Yes or no? Yes, sir. The second row, how many cells? So the length of the row is same, but it is split into two equal size cells. Yes. The third row is split among three controls, right? One label and gender. You'll have two option buttons. What you'll have? Option buttons. So if I want to customize my cells and arrange the grid as per my own requirements, then I will use which layout? Grid bag layout. For this we have this assignment to solve. We have this assignment given to us. We'll solve this assignment. I'll just share it with you all. Okay, do you see this? Yes, sir. And what does it say? Write a Java program to design a following GUI. Use Swing. Okay, and what do we have to do over here? Only what? Design. So will we be using awt.events? No. Because event is for code, right? So we'll only use Yeah. we'll only use the AWT, or we'll use the Swing, only the Swing package. Now tell me, this personal information, what is it? A label? It's a label. Yes. Now how many cells is it spanning? See, let's consider this to be a minimum one. Your interest, computer, sports and music. Okay. So for your understanding, I have prepared this. Okay. Do you all see this? Yes, sir. Okay. So this personal information is starting from which coordinate? The top left is your origin. Yeah. I want everyone to participate in the discussion. I hear only one person talking and communicating with me. So I want every one of y'all to focus. So what is the origin point in your graphics designing? 0 0, right? That 0 0 is what? Bottom left, bottom right, top left, top right. Which Top one? left. Top left. Top left. So this is your origin, right? This is your origin point. Yes, sir. Now this personal information label is starting at which coordinates? It's starting of over here. It's ranging from here. So let's start it from here. So which coordinate? 0. Coordinates is x and y. 0, 0, sir. 0 0. Very good. And it is, what is the length of this? 1 2 3 4 and 5. So what is the length? 5. And what 5, 7. length 5 है ना, और हाइट कितनी है उसकी? 7 कहाँ से है? पर्सनल इंफॉर्मेशन सिर्फ ये पार्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन है. I shall open this in paint rather. I should have opened this in paint. I should have opened this in paint. तो इसको मैं, उसका हाइट सिर्फ एक ही है ना.
ओके गाइस, खुला अभी? इसको Yes, sir. इसको सेव एज कर रहा हूँ अपने फोल्डर में. फोन में ना. So what I'm asking is, what is the origin point? 0, 0. 0, and this is also is 0. अब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो लेबल है वो इतना फैला हुआ है, इतना, यहां से यहां तक, तो उसका लेंथ कितना है? 5, 1 2 3 4 5, 5. और हाइट कितनी है? 1. तो अब इस पूरे को एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट और लेंथ और हाइट को एक साथ बोलो. क्या? एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और लेंथ और हाइट. एक्स वाई कोऑर्डिनेट, लेंथ और हाइट. आई वांट यू ऑल टू से इन वन गो. So 0, 0.5, 1. क्या बात है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सिंटैक्स समझ में आ रहा है? तो इसके लिए, इसके नाउ लुक ओवर हियर, दिख रहा है ये? हाँ सर. और ये पीई क्या है? ये पीआई है. इनफैक्ट ये पर्सनल इंफॉर्मेशन. क्या ये? व्हाट इज इट? पर्सनल. तो पी आई होना चाहिए था. क्या होना चाहिए था? पी आई. ओके. नाउ टेल मी द फर्स्ट नेम. जो फर्स्ट नेम लेबल है उसका बोलो अब जल्दी. अभी ये लॉजिक से, यही लॉजिक से फर्स्ट नेम लेबल का बोलो यहां तक. टेल मी. एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? और 0. और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? द टॉप लेफ्ट. कंसीडर द टॉप लेफ्ट पॉइंट. ऑलवेज कंसीडर दिस पॉइंट. ऑलवेज कंसीडर दिस पॉइंट. विच पॉइंट? द टॉप लेफ्ट. तो एक्स एक्सिस पे कितना है? 1. X axis, man. X axis is this. This is your x axis. This is your y axis. तो x axis पे कितना है? फर्स्ट नेम जो लेबल है, फर्स्ट नेम, उसका x एक्सिस कितना है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर का 0. और y एक्सिस 1. और लेंथ कितना है? 2. और हाइट कितना है? 1 है ना. 1 से 2 कितना होता है? अच्छा 1. तो अभी मुझे चारों बोलो एक साथ, बोलो चारों एक साथ. एक्स वाई लेंथ हाइट. टेल मी इन वन शॉट. 0, 1, 2, 1. 0 1. 2, 1. Absolutely correct. So do you see over here 0 1 2 1 for the first name का लेबल है ना? Yes sir. Now tell me the text box of the first name. जल्दी. I am talking about this. I'm talking about this now. Now I should speed up. जल्दी बोलो. जल्दी, क्या हो गया? कार्तिक. Sir 2, 1. टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर क्या है? उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2. 2. और 2 तो हो गया x में. y में क्या है? कोऑर्डिनेट्स इज x एंड y मिला के 1. 2 1. और लेंथ कितना है? 1. लेंथ 3.
और हाइट कितना है? 1 तो अभी बोलो, साथ में बोलो पूरा। 2131 ये 2131 फॉर द फर्स्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स है ना? yes आई एम गेटिंग इट। sir yes एंड नाउ टेल मी फॉर द सेकंड लेबल। टेल मी फॉर द लास्ट नेम का लेबल, कम ऑन। 0221 0221 राइट? yes तो यहाँ देखो फिर लास्ट नेम का लेबल 0221, क्लियर? तो ऐसे जब भी आप इसको डिजाइन करोगे, पहले आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे, पेंसिल से, फिर अपने कोऑर्डिनेट्स को नोट डाउन करोगे, फिर प्रोग्रामिंग शुरू करोगे। चलो नाउ आई जस्ट टेक अ स्मॉल टेस्ट एंड देन वी विल स्विच टू प्रोग्रामिंग। मुझे ये स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स, इसका बोलो, स्पोर्ट्स वाले का जल्दी। मुझे इसका बताओ, स्पोर्ट्स का जो चेक बॉक्स है, स्पोर्ट्स का जो चेक बॉक्स है, आई वांट ऑफ दिस। बोलो, हाँ बोलो। 06 हु इज सेइंग 0? इसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर पकड़ने का मैडम, इसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है टॉप लेफ्ट कॉर्नर के? D हाँ, तो कोऑर्डिनेट्स इज मिक्सचर ऑफ x एंड y, x एंड y मिलके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। 3611 ब्यूटीफुल, ये देखो इधर दिख रहा है, yes ये है उसका। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? yes sir ओके, नाउ कैन यू टेल मी फॉर द 11 sir 11 कैसे वन, वन का लेंथ 3 से 4, इट इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट? 3 से 4 कितना लेंथ है? ओके हाँ और हाइट कितना है? 6 से 7। 1 समझ में आया? अब इसका बोलो, रीसेट बटन का बोलो, रीसेट बटन का। टेल मी ऑफ दिस रीसेट बटन, विद्या यू टेल मी। You can take one coordinate, you can take 3 or you can take 2 as per your logic. Let's take 3. Let's put it over here. Let's put it over here then. चलो आपके लिए मैं ऐसा करता हूँ। चलो अभी बोलो 3 7 हाँ 7 1 1 1 हाँ 3711 परफेक्ट। समझ में आ गया ये? हाँ सर Okay. Which is the longest function you all have used with parameters? Which you have passed highest number of parameters? For area of circle, what do we have to pass? Area of circle के लिए कितने arguments पास करने पड़ते हैं? Area of circle के लिए कितने argument पास करने पड़ते हैं? सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट, रेडियस, सिर्फ रेडियस ना? हाँ सर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए कौन से? लेंथ और ब्रेथ सो उसमें 2 हो गए राइट? तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए यस एक, ओनली सिंगल आर्ग्यूमेंट, 1 आर्ग्यूमेंट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए 2 आर्ग्यूमेंट। और कौन सा फंक्शन है जिसमें यू हैव टू पास 3 आर्ग्यूमेंट्स? डू यू ऑल नो एनी फंक्शन विच यू ऑल हैव यूज्ड? सो आपने हाईएस्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कौन से फंक्शन को पास किए हैं अभी तक? ओके, हैव वी डन ड्रॉ रेक्ट? हैव वी डन ड्रॉ रेक्ट? ड्रॉ रेक्ट would take how many arguments? 4 ना? x, y and length or height. Then what about draw arc? It would take 6 arguments. How many arguments? 6 तो मैक्सिमम जो फंक्शन मैंने देखा है
जो आर्ग्यूमेंट लेता है क्वांटिटी में, तो मैक्सिमम आई हैव सीन ड्रॉ आर्क विच टेक्स 6 आर्ग्यूमेंट्स, यस और नो? बट नाउ ग्रिड बैग का जो फंक्शन है वो 11 आर्ग्यूमेंट लेगा। कितने आर्ग्यूमेंट लेगा? 11। उसमें 9 तो लर्न बाय हार्ट है। 9 आर्ग्यूमेंट्स क्या है? 9 नहीं, सॉरी, 7 आर्ग्यूमेंट्स लर्न बाय हार्ट है। क्या है? सिर्फ कौन से बदलेंगे फिर? ओनली 4 आर्ग्यूमेंट्स विल चेंज। व्हाट विल चेंज? ओनली 4 आर्ग्यूमेंट्स विल चेंज। So how many arguments does the grid bag function take? 11. Out of which 7 are stationary, will not change, are fixed. And what will change? Only 4 arguments. So we have to focus on these 4. And which are these 4? These 4 are this which we have just done. Am I understood? Yes, sir. So will you learn by heart these? इसको मगअप करेंगे क्या आप लोग? हाँ सर। मगअप क्यों करेंगे? समझ के लेंगे ना मैम। Will they give you this only क्या in the exam? They can give you anything no in the exam. Yes sir. So if you understand the coordinates, आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स का खेल समझ में आया क्या? हाँ सर। वेरी गुड। तो ये 4 आपको सिर्फ आपको जो है ना समझने हैं, बाकी 7 आप लर्न बाय हार्ट कर सकते हो। बाकी जो 7 है वो आप क्या कर सकते हो? लर्न बाय हार्ट, क्योंकि वो फिक्स्ड रहते हैं। अब वो आर्ग्यूमेंट्स क्या है? ये इधर है। डू यू सी? Yes sir. So how many arguments? The one which are in red are the one which we have to understand, and the one which are in black are learn by heart. इनको अपने को सिर्फ रट्टा करना है, इनको मगअप करने की जरूरत नहीं है। तो ये 11 आर्ग्यूमेंट्स क्या है? पहले 4 आर्ग्यूमेंट्स अपने तो कोऑर्डिनेट्स है। कौन से हैं? जो हमने पढ़े हैं अभी। 0 0 4 1। हाँ, तो ये क्या हो गया? एक्स वाई लेंथ हाइट। क्या हो गया ये? तो ये हो गए एक्स वाई लेंथ और हाइट। तो इसका तो हम पेंसिल से ड्रॉ करके निकाल सकते हैं, तो हमको मगअप करने की जरूरत नहीं है। अब जो 5 6 7 8 9 10 11 है, इसको अपने को याद रखना है बस। तो 5 क्या है? 1.0, इट्स अ फ्लोट, इट्स अ फ्लोट वैल्यू 1.0। 6 क्या है? 1.0। तो याद हो गए? 5 और 6 याद हो गए? हाँ सर। 7 क्या है? ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट डॉट सेंटर। क्या है? Grid bag constraint dot center. which layout are we studying? Grid bag layout. ग्रिड बैक। तो ये तो याद हो गया ग्रिड बैक। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या याद करना है अपने को? कंस्ट्रेंट्स। इट्स अ प्लूरल, इट्स अ प्लूरल है। तो क्या हो गया वो? ग्रिड बैग कंस्ट्रेंट। ये जो लिखा हुआ है पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये कहाँ लिखा हुआ है? अलाइनमेंट क्या है उसका? लेफ्ट राइट सेंटर क्या है? सेंटर। तो इसका लिए अलाइनमेंट के लिए है वो। तो 7th आर्ग्यूमेंट क्या है? Grid bag constraint dot center. Okay, what will you use for the first name? फर्स्ट नेम किधर है? सेंटर में है क्या लेफ्ट राइट में है? सर लेफ्ट। तो क्या यूज करेंगे उसके लिए? क्या यूज करेंगे? ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट डॉट सेंटर। नहीं, फर्स्ट नेम के लिए लेफ्ट। और नेक्स्ट 8th आर्ग्यूमेंट क्या है? ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट डॉट बोथ। क्या है? Grid bag constraint dot both. या you just have to learn by heart 5 6 7 8 9 10 11। और 9th में क्या है? इनसेट्स। 9th में क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है।
क्या है ये? ऑब्जेक्ट। और 10 और 11 क्या है? 0 0। 10 11 क्या है? 0 0। तो मुझे अभी कौन बताएगा 5 6 7 8 9 10 11 आर्ग्यूमेंट्स क्या है? जल्दी जल्दी। So 1.0 1.0 वेरी गुड, grid back constraint dot center, grid back constraint dot both, insets 0 0. ब्यूटीफुल, परफेक्ट। ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट में जीबीसी कैपिटल है, क्या है? GPC capital. और सिंगुलर क्या प्लूरल है? कंस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट्स है? Constraints. हाँ, और डॉट के बाद में सेंटर कैपिटल में क्या लेफ्ट स्मॉल में है? Capital. और इधर बोथ कैपिटल में क्या स्मॉल में है? Capital. और इनसेट्स ऑल स्मॉल 0 0। समझ में आया? हाँ sir. चलो लेट्स कम अगेन। टेल मी 5 6 7 8 9 10 11 who will take a chance now? नाजिश चली गई है। ईशा पारेख, साहिल से यस यस यू से विद्या। मैं बोलूँ क्या? हाँ विद्या बोलो। बोलती हूँ सर मैं इधर। यस विद्या टेल मी। 1.0 1.0 grid back constraints dot center, grid back constraint dot both, inset 0 0. बस इतना ही लर्न बाय हार्ट करना है, और बाकी चार तो अपने को समझना है ना? क्योंकि जब हम इसको हाँ, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हम पहले इसको पेंसिल से अपने पेपर पे ड्रॉ करेंगे, तो मगअप नहीं करना है कोऑर्डिनेट्स को। हाउ डिड वी प्रैक्टिस एप्लेट्स? डिड यू ऑल बाय हार्ट द कोऑर्डिनेट्स? First we drew it on a sheet of paper and then we plotted them on the computer, right? Very good. Now tell me how many controls do I need to make this? How many labels? 1 2 3 4 5 6। कितने लेबल लग रहे हैं मुझे? Such 6. काउंट करो वापस अच्छे से। यू आर मिसिंग आउट दिस, 7 labels 7. क्योंकि ये भी तो लेबल है ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन। हाँ सर. तो 7 लेबल। कितने टेक्स्ट फील्ड? टेक्स्ट फील्ड ओके। लेबल क्या? जे लेबल। लेबल क्या? जे लेबल किसमें करने बोला है? J label. ये करने में करने किसमें बोला है उसने उन्होंने? स्विंग में। तो लेबल क्या? जे लेबल। J label. तो कितने जे लेबल लगेंगे? Sir 7. और कितने जे टेक्स्ट फील्ड? Sir 4. कितने जे रेडियो बटन? कितने जे ऑप्शन बटन? 2. कितने जे चेक बॉक्स? 3. कितने जे बटन? 2. बस चलो वेरी गुड। अभी आप उसको प्रोग्राम करते हैं, ठीक है? अभी मैं तुमको प्रोग्राम दिखाता हूं इसका। बहुत सिर्फ अंडरस्टैंड करने की बात है। प्रोग्राम इज वेरी एलिमेंट्री प्रोग्राम। सो डू आई नीड टू इंपोर्ट इवेंट्स? आई कैन कैंसिल दिस आउट। इवेंट्स की जरूरत नहीं है ना? नहीं है। तो सिर्फ मैंने कौन से किया है? AWT किस में है? जावा में। और स्विंग किस में है? जावा 8. ये जो यूनिवर्सिटी वाले उनका स्लिप 8 है, क्या ये? स्लिप 8. और सिर्फ क्या लिखा है मैंने उसके आगे? Extends JFrame. डिड आई राइट implements action listener? No. Why no? Because they have asked me only to design, no code. तो इसके लिए सिर्फ क्या लिखा है? एक्सटेंड जे फ्रेम। ओके, कितने जे लेबल? 7. तो ये 6 L6 तक गया, और ये हेडिंग वाला लेबल पर्सनल इंफॉर्मेशन का। कितने जे टेक्स्ट फील्ड? 4. कितने जे रेडियो बटन? 2. कितने जे चेक बॉक्स? 3. कितने जे बटन? 2. और अभी मैं क्या करूंगा? ये जो है ओके, फॉर्म के लिए कौन सा लेआउट लेंगे? फॉर्म के लिए एक मिनट रुको। यस गाइस, so how many check boxes?
Are you all there? Sir, sir, 3 How many buttons? Sir, 2. Okay, अभी आ गया ये ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट्स. क्या आ गया? तो ग्रिड, स्क्रीन पूरा ब्लैक दिख रहा. एक मिनट रुक जाओ. ओके, अभी दिख रहा है? हाँ सर. कितने चेक बॉक्स? सर 3. कितने जे बटन? 2. और ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट जीबीसी का रेफरेंस बनाओ. क्या बनाओ? रेफरेंस. ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट. व्हाट इज रेफरेंस, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? जब तक न्यू कीवर्ड नहीं लग जाए ऑब्जेक्ट नहीं बनता है. जब तक क्या नहीं लग जाए. तो व्हाट इज जे लेबल L1, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस? जे लेबल L1 क्या है? L1 रेफरेंस है कि ऑब्जेक्ट है? नहीं, ऑब्जेक्ट बनता है न्यू कीवर्ड से. व्हेन आई विल डू नो L1 इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, तब ऑब्जेक्ट बनेगा. तो यहां पर हमने क्या बनाया है? ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट्स का रेफरेंस किस नाम से? जीबीसी. और ये इनसेट्स जो है ना, इनसेट्स, ये ग्राफ पेपर के जैसे काम करता है. ये कोऑर्डिनेट सेट करता है. क्या करता है ये? तो इसका नाम क्या है? प्राइवेट स्टैटिक फाइनल. मेन के लिए क्या है? मेन के लिए व्हाट डू वी हैव फॉर मेन? पब्लिक स्टैटिक. तो इसका क्या है? प्राइवेट स्टैटिक फाइनल. इनसेट्स एक क्लास है और ये उसका एक ऑब्जेक्ट है इनसेट्स. तो हाउ डू यू मेक अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास? हेलो, इन क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते जावा के अंदर? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम. और ये 4 0 आर्ग्यूमेंट जाएंगे. दिस लाइन जस्ट रिमेंबर दिस लाइन. बस लाइन नंबर 14 को याद करो. फिर आ जाओ, फिर आगे कंस्ट्रक्टर में. आगे कंस्ट्रक्टर में व्हाट इज हेड? हेड क्या है? सर हेडिंग. तो क्या है वो? तो हाउ विल वी मेक ऑब्जेक्ट ऑफ दैट? हेड इक्वल्स टू न्यू जे लेबल. एंड उसका कैप्शन क्या रहेगा? पर्सनल इंफॉर्मेशन. और अलाइनमेंट क्या रहेगा? लेफ्ट, राइट, सेंटर. सेंटर. तो स्विंग के अंदर वी कैन सेट द अलाइनमेंट लाइक दिस. स्विंग कांस्टेंट्स डॉट सेंटर. फिर L1 क्या है? सर लेबल. कैप्शन. तो फर्स्ट नेम. इज दिस क्लियर? आर दीज 6 लाइंस क्लियर? यस सर. फिर 4 टेक्स्ट फील्ड समझ में आ गए? हाँ सर. हाँ फिर सर. R1 क्या है? न्यू. रेडियो बटन. कैप्शन क्या है उसका? और ट्रू मतलब इट इज चेक. बाय डिफॉल्ट 1 विल बी चेक. तो पहले चेक क्या किया हमने बाय डिफॉल्ट? और R2 क्या है? न्यू रेडियो बटन. फिर C1 C2 C3 क्या है? कंप्यूटर, फोन और सबमिट रीसेट क्या है? बटन. ठीक है. इज आर दीज क्लियर लाइंस? am I clear from 19 to 42? any problem? नो. वेरी गुड. फिर आ जाओ ग्रिड बैक का ऑब्जेक्ट बनाओ. ग्रिड बैक को ऑब्जेक्ट. तो क्या क्लास का नाम क्या है? ग्रिड बैक लेआउट. उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या बनाया? ग्रिड बैक. इज न्यू ग्रिड बैक लेआउट. उसका ऑब्जेक्ट बना दिया हमने. और जीबीसी जो था ना ऊपर, जीबीसी किसका रेफरेंस था? ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट्स. तो व्हाट विल बी राइट डाउन? जीबीसी इक्वल्स टू न्यू. जैसे हमने यहां पर क्या लिखा था? जे लेबल L1. क्या लिखा था हमने? और नीचे हमने क्या लिखा कंस्ट्रक्टर में? L1 इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, है ना? सिमिलरली हमने यहां पर क्या लिखा था? ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट जीबीसी. और फिर नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? नीचे क्या लिखेंगे? जीबीसी इक्वल्स टू न्यू ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट. ओके. और लेआउट क्या सेट करना है? लेआउट फॉर्म फ्रेम का
Grid bag layout. तो ये रहा इसका ऑब्जेक्ट इधर ग्रिड बैग है ना। हाँ. अब आ जाओ पहले उसमें, पहला जो है ना पर्सनल इंफॉर्मेशन। अभी हम बात कर रहे हैं पहले वाले की, किसकी बात कर रहे हैं? First. किसकी बात कर रहे हैं? इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की। Personal information. ठीक है, तो उसके लिए हमने जो लिखा है, क्या लिखा हुआ है? GBC इक्वल्स टू न्यू Grid bag layout constraints. only grid bag constraint. What are the coordinates? 0, 0, 4, 1. In our case it is 5 1. In our case what have we done? 5, अपने केस में अपन ने क्या लिया है इसको? 0 0, क्योंकि हमने 5, 1. लेबल 2 का लिया, हमने लेबल 2 का लिया है। लेबल का लेंथ कितना लिया है हमने? Our label is of length 2, so this becomes of 5, and the remaining part is as it is. कौन सा है? 1.0 1.0 grid bag constraint center grid bags both in set 0 0 है ना। Yes, sir. और उसको फिर ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? add head with these GBC constraints. नेक्स्ट GBC क्या है? Next again set the GBC 0 1 2 1 with the same thing and keep on adding. बस ये लिखना है। कंस्ट्रक्टर क्लोज, ये टाइटल बस सब सेट करना है। कंस्ट्रक्टर क्लोज, मेन में जाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, खलास। Okay. So you just have to learn this 11 coordinates. ये 11 कोऑर्डिनेट्स का याद रखना आपको जरूरी है। उसमें सिर्फ ये शुरू के 4 चेंज होते रहेंगे, बाकी सब स्टेशनरी है, फिक्स्ड है। क्लियर? हाँ सर। तो ऐसे बस वो सेट करते जाओ और ऐड करते जाओ, और फिर लास्ट में फ्रेम का टाइटल क्या है, साइज क्या है। ओके, सेट डिफॉल्ट ऑपरेशन इज व्हेन यू क्लिक ऑन द रेड क्रॉस, यू नो दिस रेड क्रॉस दिख रहा है, ये रेड क्रॉस। Yes, sir. तो इसके क्लिक पे क्या करना है आपको? क्लोज करना है फ्रेम को। तो क्या लिखा हुआ है? J frame exit on close and visible will be true. Constructor finishes, write the main method and make the object of the class so that it calls the constructor, and you can see this. So you want me to show it to you? रन करके दिखाना है तुम्हारे को कैसे रन होता है वो? See, I'll just show it to you. सर आपने रिकॉर्डिंग किया है? हाँ, रिकॉर्डिंग किया है। दिख रहा है ये? नहीं। हाँ सर। देखो दिख रहा है? हाँ सर। Are you able to see the layouts? Yes sir, दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ। तो ऐसा आउटपुट आएगा उसका। क्लियर? Yes sir. And when I click on the red cross, what will happen? Exit. It will close. The form will close. ठीक है, I'll share this video and I'll share the file also with you all. Am I understood with this file, guys? It's just designing part, nothing much in it. Just remember those 11 coordinates. This is where you have to work upon. उसमें भी सिर्फ शुरू के 4 अपने को अंदर समझना है, बाकी के 7 सब फिक्स्ड है। ठीक है? हाँ सर। चलो देन, टेक केयर, बाय। थैंक्स सर। बाय।